This is a budget that appears to have fine words, but it's far from clear what kind of devil there is going to be in the implementation details. For example, we hear a lot about infrastructure investment, but the sad truth is that in our country, something like 13% of our GDP is stuck in incomplete infrastructure projects. So unless we actually see concrete implementation, we cannot judge whether this budget is going to deliver results. There is no timeline with regard to the implementation of the goods and service tax. The finance minister has said that we'll bring it in next year. The direct taxes code has been completely junked and abandoned. This government, which used to talk about tax terrorism when they were in the opposition, there is nothing except a homely on retrospective taxation. Moreover, importantly, there is nothing in this budget for the common man. वैसा ही ये जेटली साहब का विजन डॉक्यूमेंट है. इसमें कोई गरीबों के लिए किसी प्रोग्राम का ना इंक्रीज है, ना इसमें कोई ज्यादा पैसा दिया गया है. ये सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों को खुश करने की बजट, इंडस्ट्रियलिस्ट को राहत देने की बजट, और इसमें जो आगे चुनाव आ रहे हैं उन स्टेट को खुश करने का बजट है. इसके सिवाय और कुछ नहीं. For the mandate that they got and for the commitment they had done for the reforms that they had said, I must say it is disappointing because they could have done much more. अभी तक तो इसमें कोई दम निकली नहीं और देश कैसे बन जाएगा. इस बजट में खास करके एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सी बातें कही गई, लेकिन वो पहले भी कही जाती थी. ये सिर्फ यानी हर तरफ पैसा थोड़ा थोड़ा बांट करके ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिया. समस्याएं विकट हैं और उसके अनुसार जो बजट एलोकेशन है उसमें कोई दम नहीं मानता. तो अपने मूल बजट से हटते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जो भी रीऑर्गेनाइजेशन बिल है उसमें जो प्रोविजन है और जो कमिटमेंट है उसका पालन किया जाएगा. उनकी इस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं. इससे ये उम्मीद बंधी है कि जो हमें मिलता था वह तो कम से कम जरूर मिलेगा. तो इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं. And the direct taxes means benefit to those who are direct tax payers or income, those who get income. And indirect taxes are on all commodities which is passed on to the consumer. So indirect taxes being nearly 3 times higher than the concession given to the direct taxes. That means there is a direct benefit that is being given to the rich, and clearly therefore these budget proposals will lead to the widening of the economic inequality gulf between the two Indias. नहीं, बजट में किसानों के लिए सुविधा दी नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए सुविधा दी नहीं, और नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए दी नहीं. क्यों? गरीबी बेरोजगारी से बढ़ती है. गरीबी बेरोजगारी से बढ़ती है, गरीबी से बेरोजगारी नहीं बढ़ती है. अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए तो हमारा देश संपन्न हो जाए. राज्यसभा टीवी पर आप बजट से जुड़ी कवरेज लगातार देख रहे हैं. नमस्कार, मैं हूं अमृता और आज हम इस घंटे में बताने जा रहे हैं कि आखिर सरकार ने जो आज अपना केंद्रीय आम बजट प्रस्तुत किया है उसमें टैक्स, डेफिसिट, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ के बारे में विस्तार से क्या कहा है. हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय कराते हैं. हमारे साथ हैं सबसे पहले NR भानुमूर्ति जो कि NIPFP के मेंबर हैं. बहुत बहुत स्वागत है भानुमूर्ति जी. हमारे साथ इसके अलावा हैं सीनियर डायरेक्टर डिलॉयट के SP सिंह जी. बहुत बहुत स्वागत है आपका भी. और हमारे साथ हैं द टेलीग्राफ अखबार के जयंता रॉय चौधरी. आपका भी बहुत स्वागत है. और हमारे साथ हमारे सहयोगी ईशान
Yes, Ishan Russell is also over here, and of course over the next 1 hour we'll try to assess as far as these three main focus points: taxes, fiscal deficit, and inflation versus growth. Is their argument really there? We'll be putting that across to the two experts over here. In fact, we'll also be joined by former Finance Secretary C.M. Vasudev a little later in the show. So Amrita, let's kick off the show with talking about the first thing about taxes, the direct tax code, the GST, income tax. All those things come into that ambit, but in terms of the significance of taxes in this budget, what would you say would be the big takeaways as far as tax is concerned? Well, it's a scenario where we have given away some and taken away some with the other hand. We have given a lot of, the government has given a lot of leeway on the direct taxes. If you see that, there has been concessions, tax stops. Government wanted to increase the savings rate. The savings rate, as you know, was something as much as high as 36% in the year 2007-8. Since then, it has been steadily falling, and it was about 30% last year. So there was a need to push the savings rate. They have done that. 50,000 rupees more can now be saved beyond your 1.5 lakh, which you could save under the 80C if you invest in a new pension scheme. The medical insurance, Mediclaim facility has also been increased. So these are good measures which the middle class will certainly be happy about. आप कह रहे हैं सेविंग बढ़ाने के लिए ये सब हुआ है, लेकिन अगर लोग खर्चा नहीं करेंगे तो फिर वो जो इकोनॉमी को बूस्ट देने की बात है वो कैसे होगी? नहीं, दो चीजें आप देखिए. एक सबसे पहली प्रथम बात ये है कि आप अगर सेव नहीं करेंगे तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. दूसरी बात है, जहां पे आप खर्चा की बात कर रहे हैं, सरकार खुद पंप प्राइमिंग करने वाली है इकोनॉमी को. वही उनकी स्टेटमेंट अगर आप देखें, वो कोशिश कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ाया जाए. उसके लिए दो तीन चीजें हैं. एक तो उनके पास खुद अगर दो बातें हैं, टैक्स की दो बातें हैं. एक गरीबों के लिए यानी मिडिल क्लास लोगों के लिए है और एक अमीरों के लिए है. हम इस समय, मैं जो सवाल पूछ रही थी वो मध्य वर्ग के लिहाज से पूछ रही थी, अमीरों के लिहाज से नहीं पूछ रही थी. आप जो जवाब दे रहे हैं वो अमीरों के लिहाज से. नहीं, बिल्कुल नहीं. आप ये बात पे निश्चिंत रहिए कि अगर मध्यम वर्ग के पास नौकरी ना रहे तो वो वैसे भी खर्चा नहीं कर पाएगा. आज के तारीख में फॉर द लास्ट पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें, आपके पास जो ग्रोथ हो रहा है वो ऑलमोस्ट जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है. जॉबलेस ग्रोथ नहीं कहूंगा, पर ऑलमोस्ट जॉबलेस ग्रोथ. जी, बार-बार ये आप तमाम कॉर्पोरेट पत्रकारों कॉन्सिक्वेंटली नहीं, कॉर्पोरेट पत्रकार की बात नहीं है. आपको अर्थनीति इसका एक मूल ढांचा है. इसे किनेशियन इकोनॉमिक्स कहते हैं कि आपको खर्चा करने पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे. उससे पहली बात है कि नौकरियां क्रिएट होगी. दूसरी बात है लोगों के पॉकेट में पैसे आएंगे और वो पैसे आने पे ही वो खर्च कर सकते हैं. तो टैक्सेशन आप अगर घटा दे, उससे जो थोड़ी बहुत सहूलियत होगी मध्यम वर्ग को, वो खर्चा अगर आप सोच रहे हैं कि वो करेंगे, नॉट नेसेसरली कि वो पैसा खर्चा करेंगे. उसी लिए ये एक, इसको किनेशियन इकोनॉमिक्स कही जाती है और ये मोटा मोटी सक्सेसफुल रहा है. पिछले अगर इतिहास देखें, इतिहास के पन्ने देखें, अशोक और अकबर के वक्त भी अगर जब हालात खराब होते थे देश के, तो वो खर्चा करते थे पब्लिक वर्क्स पे. रास्ता बनवाते थे, मस्जिदें मंदिरें बनाते थे. यही चीज 1930 के दौरे में जब ग्रेट रिसेशन आया था तब अमेरिका में हुआ था. तो यही चीज फिर से अपनाया गया 2008 में जब हमारे यहाँ पे एक रिसेशनरी ट्रेंड आई. रिसेशन तो नहीं आया था, बस स्लो डाउन. अब तो हम ग्रोथ की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं. हमारी ग्रोथ बहुत स्टटर कर रही है, फॉल्टर कर रही है हमारी ग्रोथ. सत्य अगर आप देखें, आज तो कहा गया है कि 8 से 8.5% के हिसाब से बढ़ने जा रही है ग्रोथ. देखें, ये आपकी नई आंकड़े हैं जिसके हिसाब से 8 से 8.5% की ग्रोथ है. अगर आप पिछले साल के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिगर्स देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि ग्रोथ बहुत ही निम्न स्तर का था. तो अगर आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाना है तो आपको खर्चा करना. क्या ये सही रास्ता है एसपी सिंह जी, जो वित्त मंत्री जी ने आज अपनाया है कि मध्य वर्ग का थोड़ा हाथ बांधो और जो अपर क्लास है या जो कॉर्पोरेट जगत है उसका थोड़ा हाथ खोल दो, उसको थोड़ा और मदद दे दो, तो दोनों के बैलेंस से इकोनॉमी ठीक रहेगी? देखिए, यदि आप ये पूरे बजट को यदि पढ़ें तो उसमें एक जो बात बहुत खुल के आ रही है वो ये है कि उन्होंने किसी को भी जरूरत से ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं दिया है. यदि मान लीजिए कि आप कॉर्पोरेट जगत को भी देखें तो उन्होंने कहा कि आपका टैक्स रेट घटाएंगे, वो जो अगले साल से घटाएंगे वो, और उसके साथ साथ जो एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ्स हैं उसको हटा देंगे. यदि वो दोनों काम आप करते हैं तो उस समय टैक्स, जो इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा वो करीब करीब जो अभी टैक्स रेट है उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा ही होगा. जो चीज उन्होंने की है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो कंसोलिडेशन एंड स्टेबलाइजेशन की. क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने बात की है. गार को उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए हम पोस्टपोन करते हैं, सो दैट आप घर को पहले ठीक कर ले एंड एवरीबॉडी कम ऑन बोर्ड. तीसरी चीज जो है, उन्होंने छोटी छोटी चीजें जो
गलतियां रह गई थी पहले या जो कमियां थी किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने में टैक्स लॉ का ही, जैसे TDS सर्टिफिकेट्स था, टैक्स TCS सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं जो कि काफी मॉडरेशन होते थे किसी भी टैक्स पेयर के लिए, उसको उन्होंने और भी इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो इस बार के बजट में यदि हम लोग देखें तो जहां तक टैक्स का सवाल है, कोई उन्होंने नई चीज नहीं करने की कोशिश की, क्योंकि एक नई चीज नहीं की है, इसलिए शायद थोड़ा मध्य वर्ग में निराशा भी है, थोड़ा सा हो सकता है। हाँ। इसमें मान लीजिए यदि हम ये आशा कर रहे थे कि हमारा टैक्स रेट घट जाएगा या हमारा स्लैब बढ़ जाएगा और वो चीज नहीं होता है, तो कोई भी 2 मिनट के लिए दुखी हो सकता है। लेकिन यदि आप पूरे कंट्री के इकोनॉमी को देखना शुरू करें और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ दिनों के बाद क्या उसका फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, तो यदि लॉन्ग टर्म बेनिफिट का देखें, हम लोग अभी तक क्या करते रहे हैं कि यदि हर बजट को ही समझें कि इसमें कोई ना कोई रिलीफ हो, तो एक साल रिलीफ होगा, दूसरे साल टैक्स बढ़ जाएगा। वो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति होती है जिसमें कि टैक्सेशन टोटल स्टेबिलिटी खो देता है। तो इन्वेस्टर भी जब whenever the investor thinks of coming to India, he doesn't know that in 5-year time what will be the tax structure. So this is what the finance minister basically tried to do, rationalize the tax regime. He set out, at the onset of the speech itself, he said the non-adversarial tax regime and cashing in on that climate that India has been able to generate about getting in more investment. We'll come back to you, Mr. Singh, because we want to quickly play out, Mr. Bhanu Murthy as well, what the Prime Minister had to say about the budget. So let's play out that for our viewers and we'll be right back. SC, ST, OBC, दलित, पीड़ित, शोषित जो पीछे रह गए हैं, उनको विशेष बल देना। जिन मनरेगा की बड़ी चर्चा होती थी, इतने सालों में मनरेगा में पहली बार गांव के गरीब को रोजी रोटी मिले, इसलिए सर्वाधिक धनराशि गरीबों के रोजगार के लिए लगाई गई है। हमारे देश के छोटे छोटे व्यापारी रेकड़ी चलाते होंगे, सब्जी बेचते होंगे, कपड़े की फेरी करते होंगे, उनको धन प्राप्त करने के लिए बैंक हाथ ऊपर कर देती है, उनको पैसा मिलता नहीं है। उनके लिए धन राशि सरलता से मिले, जितनी चाहिए उतनी मिले, उसके लिए मुद्रा की एक अलग योजना हमने प्रस्तुत की है जो आने वाले दिनों में उनको काम आने वाली है। इस बजट में काले धन के संबंध में हमारी क्या सोच है, हमारा क्या कमिटमेंट है, इसको पूरी तरह हमने देश के सामने रखा है। अब काला धन वालों का खैर नहीं है, सिवाय जेल अब उनके नसीब में कुछ नहीं है। नया कानून हम ला रहे हैं और आज बहुत विस्तार से काले धन के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई करने की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। साथ साथ अब काला धन नया तैयार ना हो, उसके लिए भी बेनामी ट्रांजैक्शन का जो कारोबार चलता है उसके खिलाफ भी कानून ला रहे हैं। बजट निवेश बढ़ाने वाला भी होना चाहिए, हमारी आर्थिक क्षमताओं को मजबूत बनाने वाला होना चाहिए। इस बजट की सारी योजनाएं निवेश को बढ़ावा देने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने वाली है और सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने वाली, और मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर जुटाने वाला ये बजट है। इस बजट में सामान्य मानवी के लिए इतनी सारी योजनाएं लगाई हैं, चाहे वो आकस्मिक बीमा की बात हो, जीवन बीमा की बात हो, पेंशन की बात हो, हमारे नौजवानों को पढ़ने के लिए कॉलेज में जो खर्च होता है उसके लिए बैंक में इजीली लोन की व्यवस्था हो, एक के बाद एक सुचारू रूप से व्यवस्थाएं विकसित की है। और सबसे बड़ी बात, खास करके मेरे किसान भाई बहन, खास करके मेरे गरीब भाई बहन, जो जिनको अपने बुढ़ापे की चिंता है, हिंदुस्तान के हर गरीब से गरीब भी, किसान को भी, खेत मजदूर को भी बुढ़ापे में जब काम करने की स्थिति न रहे उसको पेंशन मिले, ऐसी एक योजना हमने रखी है। पहली बार इस देश में हर नागरिक पेंशन के अंदर कोई न कोई लाभ लेगा, ऐसा एक बहुत बड़ा भगीरथ काम इस बजट के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
मैं मेरे मित्र और साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को गरीबों के लिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, सामान्य से सामान्य मानवी को नए उमंग और उत्साह के साथ नई चीजों करने के लिए प्रेरित करने वाला बजट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देशवासी, मुझे विश्वास है ये बजट आने वाले दिनों में हमें और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक अवसर प्रदान करेगा। So the Prime Minister Narendra Modi, they're congratulating Finance Minister Arun Jaitley on the budget. The Prime Minister, of course, saying that this budget is really, really good for the country. Is that so? We're asking our experts over here. CM Vasudev, former Finance Secretary, is also live with us. Thank you very much for coming and talking to us over here on Rajya Sabha TV, sir. We've been talking about taxes and we'll continue that discussion for a couple of more minutes before we switch to fiscal deficit and then on to the question about growth and inflation. But as far as taxes are concerned, there have been a host of things that have happened in terms of going into this budget. There was a lot of talk about the direct tax code, implementation of that. The GST, of course, is pending, and the fact that service tax has been brought to the GST levels, almost 14% now, and also the corporate tax being rationalized a little, being brought down as well. So do you think in terms of the message as far as taxation and the government go, what is the message that the finance minister sent out? I think he's broadly tried to give a message of predictability and sustainability of the tax policy regime. And many of the proposals that he has put forward fall in that category. I think the GST roadmap seems to be in place, but one would have liked to see a little more clarity on how the target date of 1st April 2016 is going to be met. What is the preparation with regard to the IT infrastructure? What is the preparation with regard to capacity building in the states? On the corporate tax side, I think there is a lot of misunderstanding, as if the impression is being given that it is a pro-corporate tax type of a proposal, which it really is not so, because the reduction in corporate tax over a period of 4 years from 30 to 25% will be compensated by reduction in many of the exemptions which are available. So in that sense, this proposal is going to be tax neutral or revenue neutral from the point of view of the government's budgetary resources. Right. The whole idea seems to be to bring our direct tax rate, especially for the corporate sector, in line with the tax rates prevailing in other East Asian economies, so that we become a more competitive investment destination, and I think that is to be welcomed. It will be a big challenge, I think, for the government. It is a challenge for the government, I think, to communicate these tax proposals a little better to the people, so that this impression that it is a pro-corporate type of a government and it is anti-poor, this type of impression doesn't get accentuated, because it is not so. Because the finance minister has tried to present a very balanced budget which takes into account the needs of all sections of the society. Right, we'll just come back to you. Now, Bhanumurthy, you wanted to come in on this subject as well, and I want to come to you about the service tax, because that is something that will pinch even all of us sitting over here. Mobile, your phone bills are going to get a little bit steeper, restaurant bills are going to get a little steeper. ईशान, उस पर जाएं उससे पहले मैं भानुमूर्ति जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप हिंदी में इसका जवाब दे सकें, चाहे तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। बार बार कॉर्पोरेट जगत की तरफ से और आर्थिक विशेषज्ञों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है और ये कह रही है कि कॉर्पोरेट को ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश इसमें की गई है, लेकिन अर्थ जगत के लोग इसे सही नहीं मान रहे हैं। तो क्या ये हम माने कि ये एक बैलेंस बिठाने की कोशिश फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से की गई है और वो बैलेंस ओवरऑल बजट में देखने को मिल रहा है? फिर मध्य वर्ग क्यों निराश है? No, I think on both direct taxes as well as indirect taxes, all my panelists have already spoken about it. I think one thing that I missed in the discussion is within the direct taxes, the biggest challenge for the government is how to increase the tax base. I mean, that is something that has been, the ministry has been struggling with. We know that only 3% of the citizens pay direct taxes. So given these exemptions,
I guess it will have some impact on enhancing the tax base, particularly on the direct taxes. As we see in the budget proposals, almost 1 lakh increase in the exemption. I mean, I think 4,42,000 is the exemption limit at the moment. If you avail all the पेंशन स्कीम एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड एंड ऑल दोस थिंग्स जी लेकिन ये भी सच है कि जो सैलरीड क्लास लोग हैं वो ज्यादातर 10 लाख के एवरेज में कमाई करते हैं, उनकी पर एनम कमाई लगभग 10 लाख के आसपास है। तो अगर 10 लाख कमाने वाले लोग हैं तो वो 4.5 लाख पर एनम बचा कहाँ पाएंगे? तो अपना खर्चा निकालने में मुश्किल होती है। The point is, organized sector is already part of the tax base. I think how to get, if you look at yesterday's economic survey also, how to formalize the informal sector within the tax network. I think that is the more challenging task. My guess is that this proposal should help in widening the tax base, both salaried as well as non-salaried kind of segments. On the service tax, yes, I think it's going to be it's going to pinch a little bit on all our wallets. But as one of the panelists pointed out, one of the objectives of the tax proposal this time is not only the predictability, sustainability, at the same time having a smooth transition to GST for the next year. What it means is that we are going to see a more than 24 to 25% GST rate as and when it is going to be implemented. So that is the indication it is coming from the service tax proposal today, although it is going to pinch our wallets. एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अगले साल से जीएसटी लाना है तो उसके लिए एक मानसिक आधार भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन क्या हमारे देश के लोगों का और खास तौर से वो मध्य वर्ग का जो बड़े पैमाने पर बीजेपी का वोटर भी रहा है लोकसभा चुनाव में 1 साल पहले तक, उसकी मानसिकता में वो मिडिल क्लास देखिए, इसीलिए मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ सौंप दिया गया है। परंतु हाँ, जो भानुमूर्ति जी कह रहे हैं वो सही है कि आपको अगर जीएसटी लाना है तो आपको टैक्स रेट्स थोड़ा बहुत बढ़ाने पड़ेगा। यद्यपि ये अलग बात है कि जीएसटी एक बार आ जाएगा तो ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ टैक्स घट जाएगा। अब वो 25 कह रहे हैं, घटा तो नहीं लेकिन बढ़ा दिया। इस वक्त के लिए, फिलहाल के लिए 1 साल, कम से कम 1 से 2 साल तक एक्चुअली टैक्स पिंच करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो थोड़ा बहुत पिंच करेगा। 25% जो अगर इनडायरेक्ट टैक्स वाकई में रखा जाए तो बहुत हाई होगा। एशियन कंट्रीज में, खास तौर से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एवरेज जीएसटी 9.5% के करीब है, 8.5 से 9.5 के बीच में रहता है। हमारे यहाँ पे बातचीत चल रही थी कि 18% किस तरह से की जाए। स्टेट्स की डिमांड थी कि 25 के पास लाए, क्योंकि वो कह रहे थे जितने भी टैक्सेस हैं सबको मिला के जितना होता है जीएसटी उतना होना चाहिए। 12% सेंटर ले ले और बाकी हम ले लेंगे, 13-14% ले लें। इतना अगर वाकई में 25% की आप अगर जीएसटी लगाए तो तौही मच जाएगी। तो वो करना थोड़ा मुश्किल है। सरकार की इच्छा ये है, अभी ही लोगों के अंदर खास तौर से मध्य वर्ग बड़ा परेशान होने लगा है। एक तो टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ, दूसरा जो थोड़ी बहुत रियायत मिली है, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर हो या ट्रांसपोर्ट के नाम पर, वो इतनी मामूली है। मांग तो 4,000 की थी ट्रांसपोर्ट में छूट देने की और 800 से बढ़ाकर 1600 कर दिया गया। तो कोई बहुत ज्यादा उसमें भी उसको उत्साहजनक वो नहीं लग रहा है। जो आपने सेस लगा दिया है हायर एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में, स्वच्छ भारत मिशन में, सब जगह सेस लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं तो ओवरऑल मध्य वर्ग और आम लोगों के ऊपर उसका बोझ पड़ने जा रहा है ना। ये बात सही है, क्योंकि अगर आप वाकई में डायरेक्ट टैक्स कोड को आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अभी आपने कह दिया कि हमें नया डीटीसी की जरूरत नहीं क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया टैक्स कोड को, उस हिसाब से तो आपको सेसेस हटानी चाहिए थी। एग्जेम्पशंस एक तरफ से हटा दीजिए, क्योंकि अगर उस तरह से देखें तो जो एसएसए है उसका तो बजट घट गया है। एसएससी में बजट काफी कम कर दिया है, 13,000 करोड़ से अब कुछ 8,000 करोड़ पे आ गया है बजट। तो फिर उस हिसाब से तो सेस को कम करना चाहिए था। नहीं, पर आप कोशिश कर रहे हैं कि उस पैसा रहे और अगले साल शायद खर्च करें। 1 साल में तो आप खर्च नहीं कर पाएंगे। परंतु हाँ, सेस एज अ प्रिंसिपल, सेस इज नॉट अ गुड वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस, और डायरेक्ट टैक्सेस इज अ बेटर वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हर एक पे लगता है, गरीब पे भी लगता है, अमीर पे भी लगता है, और डायरेक्ट टैक्स कम से कम आप कह सकते हैं कि कुछ एक छोटा सा वर्ग पे लगता है। हाँ, भानुमूर्ति साहब की बात एकदम बिल्कुल मैं उनके साथ एक मत हूं कि हमारे जो टैक्स का जो बेस है बहुत छोटा है, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि किस तरह से वो टैक्स का बेस बढ़ाया जाए। उसके लिए जो भी आप करें, आप
बेशक उसके लिए आप इंसेंटिव्स दे लोगों को कि आप वो टैक्स के दायरे में आने के लिए तैयार हो। डायरेक्ट टैक्स, बोथ पर्सनल इनकम टैक्स और द्वितीयतः कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, दोनों ही में बहुत चोरी होती है। लोग कंपनियां चलाते हैं, उसका कोई टैक्स देते नहीं है, रिटर्न तो भरते नहीं है सालों पे साल। पर्सनल इनकम टैक्स में भी यही बात है। सिर्फ जो नौकरी पेशा आदमी है वो बेचारे पीछा जाता है, क्योंकि उसका कोई चारा नहीं है, उसका टैक्स डिक्लेयर्ड रहता है। तो इन हालातों में वाकई में ये बात सही है कि जब तक ना आप टिन जिसे कहते हैं टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, तब तक आपका बेस भी बढ़ नहीं पाएगा। तो क्या टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस बजट में कोई संकेत है? फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बारे में कहा था कि जो डाटा है उसको कोलेट करना और कलेक्ट करना और उसको प्रॉपर वे में कोलेट करना, और तब उसके बाद आइडेंटिफाई करना कि सारे जो लोग हैं जो कि टैक्स नेट में आ सकते हैं वो टैक्स नेट में आ गए हैं या नहीं आ गए हैं, वो एक मेजर है जो कि गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे ले रखा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि आप देखिए यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कस्टम्स डिपार्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास जो वॉल्यूम ऑफ डाटा जो जा रहा है वो रियली ह्यूज है। इट्स माइंड बॉगलिंग। अब उसको उसमें से इफेक्टिव चीज निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है, और जब वो मतलब वो अचीव कर लेंगे, तब जो लोग टैक्स नेट के बाहर हैं उनको डिपार्टमेंट अंदर ला सकेगा, और तब जो है वो कहा जा सकता है कि अब टैक्स बेट हमारा काफी वाइड हो गया। लेकिन आपने अभी जैसे जो मेन मुद्दा उठाया था कि मिडिल क्लास जो है वो दुखी है। मिडिल क्लास नेचुरली, यदि मान लिया कुछ रिलीफ नहीं मिला और एक्सपेक्टेड था तो नेचुरली दुखी होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मिडिल क्लास ये देखता है कि जो प्राइस राइज हो रहा है क्या वो ज्यादा है या कम है। इन केस यदि मान लीजिए कि आप यदि मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि प्राइस राइज नहीं हो रहा है, तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो प्राइस राइज ऑलरेडी हो चुका है वो तो स्टेबलाइज हो चुका है। 150 रुपए किलो अगर कोई दाल मिल रहा था तो वो 150 रुपए पे स्टेबलाइज हो गया, वो कम नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। तो अब जैसे कि मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास खुश हो गया है, बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा दोनों चीजें इतनी इंटरमिंगल्ड हैं कि यदि आप एक हाथ से यदि किसी को देते हैं तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं वो कोई इनइफेक्टिवनेस तो इनएफिशिएंसी तो नहीं क्रिएट कर रहा है। वो दोनों चीजों को ध्यान में रख करके तब प्रोवाइड करना पड़ता है। मिडिल क्लास ज्यादा दुखी इसलिए होता है कि उसको ये नहीं समझ में आता है कि जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसके हेल्थ का कौन ध्यान रखेगा, या उन सब चीजों का। यदि मान लीजिए गवर्नमेंट ये मैकेनिज्म बनाती है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि कल का जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, देयर विल बी गुड इंस्टीट्यूशंस, अच्छे डॉक्टर होंगे या हॉस्पिटल्स होंगे, तो उसके लिए कुछ पैसे एलोकेट किए गए। मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, जो कि मान लीजिए कि जो हेल्थ वगैरह के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की, तो उनकी बात का तब फायदा होगा, या जो मान लीजिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं उसका तब वो फायदा होगा जब ये सारी चीजें धीरे धीरे अरेंज होनी शुरू हो जाएंगे। All right, Amrita, you've been talking about the middle class and the Aam Aadmi, and one thing certainly affecting them is housing loans, and that is of course tied into inflation, and there is pressure on the RBI to cut rates. So as far as the inflationary trends go, Mr. Bhanumurthy will come to you on that. As far as these inflationary trends go, the budget certainly says that we'll maintain a 5% kind of inflationary rate, but does that mean lower, does that mean more rate cuts, does that mean more money in terms of in the system where loans become cheaper? Does that thing start happening now? And then we'll also talk about how this links into growth and then the fiscal deficit. Well, yes, I think certainly there is a downward movement in the inflation, which might force the central bank to cut the interest rates. But at the moment, I think central banks... But is it really under control, or is it being influenced by factors like global factors, crude prices, things like that we've heard over the past 6 months that inflation has come down, but is it really in our control? Are we bringing it down, or is it just happening by itself? No, I think it's combination of both domestic policies as well as to some extent luck from international oil prices. The fact that the international oil prices have declined by almost 50% compared to last year should reflect on India's inflation, and that's what we are looking at. But at the same time, the tight monetary policy that's been followed by the central bank for quite some time has also resulted in lower inflation. Again, if you look at the global commodity prices, not just the oil prices, global commodity prices also actually declined. Most of the world is in a deflationary kind of situation. I think
only few countries like India where we do have at least a decent inflation rate at the moment. But its impact on the interest rates, my guess is that central bank is not really looking at the interest rate channel of monetary transmission mechanism. And I think in the previous show also we have discussed the banking sector is in a bad shape. Even if the policy interest rates come down, we are not going to see the transmission of that interest rates to the people who are demanding loans. So until unless we don't clean the banking sector balance sheets, and given the fact that the banks had so many NPAs, Mr. Bhanumurthy, do you see enough in the budget as far as that is concerned in terms of just bolstering our banking system that really has been one of the main crux of the problems as far as the economy is concerned? That is one thing which I was slightly disappointed. There's not really much mention about addressing the issues in the banking sector. Although there was some talk about Mudra Bank for SMEs and small enterprises, but overall banking sector there's not much really been addressed. We need to really look at how much they have allocated to recapitalization of banks. My guess is that it's not really much, and moreover the NPS are really staring up. I think for the next year, come 1st April 2015, you might see a substantial rise in the banking sector NPS. I think one needs to really address it before we talk about central bank reduction in interest rates. जी वासुदेव साहब, आपसे भी यही सवाल है कि आखिर बैंकिंग सेक्टर की तरफ थोड़ा सा अनदेखी हुई है क्या? आपको लगता है इस बजट में बैंकिंग सेक्टर की तरफ कम ध्यान दिया गया है और उसका भी एक ओवरऑल नुकसान तो कहीं ना कहीं मध्य वर्ग को ही होगा? नहीं, बैंकिंग सेक्टर की तरफ ध्यान तो मेरे ख्याल से आपसे दिया गया है, क्योंकि बजट का जो एक माध्यम है, ये एक फिस्कल पॉलिसी का टूल है और बैंकिंग सेक्टर और आरबीआई ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं। तो कोई बजट एक बहुत बड़ा माध्यम नहीं है जिसमें बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ दर्शाया जाए, मगर क्योंकि बहुत सारे बैंक्स हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप के बैंक्स हैं, इसलिए उनके ऊपर बजट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो जरूर आना चाहिए। और इसलिए बहुत अच्छा सुझाव दिया है वित्त मंत्री ने कि एक होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में विचार कर रहे हैं जो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एक होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एक बेन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग यही है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है डायरेक्टली, गवर्नमेंट ओनरशिप राइट्स डायरेक्टली करते हैं। अगर एक होल्डिंग कंपनी हो जाएगी तो उससे थोड़ा ऑटोनॉमी बैंकिंग के फंक्शनिंग में आएगी। दूसरी बात ये रही, कुछ पैनलिस्ट ने जो कहा अबाउट एनपीएस, क्या आपको लगता है वाकई ऑटोनॉमी आएगी? क्योंकि अभी जिस तरह से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, खासतौर से अभी जिस तरह से जनधन योजना की शुरुआत हुई और जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं उनके ऊपर जिस तरह का दबाव रहा, काम तो बहुत है और दूसरी तरफ एनपीए का दबाव है, तीसरी तरफ सरकारी स्कीम्स को लागू करवाने का दबाव है। तो इस दबाव को झेलते हुए वो कैसे फ्लरिश करेंगे? एक बात और पूरी कर लूं अपनी, एक बात मैं और पूरी कर लूं। ये जो कहा गया कि एनपीएस अगले साल में बढ़ सकते हैं, उसके बारे में देखिए, अगर वास्तव में एनपीएस बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो ग्रोथ मोमेंटम आप इकोनॉमी को दे रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि काफी हद तक जो एनपीएस होते हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर है बैंकिंग, वो जो रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर या सर्विस सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो एनपीएस अपने आप बढ़ेंगे। तो अगर ये सब जो कदम वित्त मंत्री ने उठाए हैं ग्रोथ मोमेंटम इम्पार्ट करने के, इससे तो मेरे हिसाब से एनपीएस में कमी आनी चाहिए। अगर फिर भी एनपीएस में इजाफा होता है तो फिर ये जो ग्रोथ के इनके पॉलिसीज हैं वो सक्सेसफुल नहीं है। आपको लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे ग्रोथ की पॉलिसी पर असर पड़ेगा और उससे जो है बैंकिंग का भी हेल्थ सुधरेगा और ओवरऑल इकोनॉमी का भी हेल्थ सुधरेगा? यद्यपि वासुदेव साहब के ऊपर मेरा मैं उनको बहुत श्रद्धा करता हूं, बहुत छोटा बच्चा रिपोर्टर था जब वो वित्त मंत्री मंत्रालय में थे, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा जिस सिस्टम है उसमें एनपीए बढ़ने का जो भानुमूर्ति जी कह रहे हैं वो शायद हो जाएगा, क्योंकि इसका वजह ये है कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो लोन लिया जाता है उसमें से आधा से ज्यादा साइफन ऑफ हो जाता है और
ओवर जिसे कहते हैं हम ओवर इनवॉइसिंग करके बिजनेस हाउसेस काफी हद तक पैसा निकाल लेता है और वो प्रोजेक्ट कभी भी वायबल नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली या तो आपको लोन राइट ऑफ करना पड़ता है, आप अगर स्टील सेक्टर में पिछले डिकेड में देखें तो यही हुआ है, या तो फिर आपको उसको टोटली राइट ऑफ होता है या टोटली एनपीए बन जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, पर यही साइकिल हम देखते आए हैं। अभी जो पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लास्ट माइल फाइनेंसिंग की बात हो रही है, बहुत कोशिशें चल रही हैं, उनमें से कुछ जरूर वायबल हो जाएंगे, परंतु बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे इनबिल्ट कॉस्ट इतना ज्यादा हाई बना दिया है, यद्यपि शायद असलियत में कॉस्ट उतना नहीं है, उसलिए वो प्रोजेक्ट जिंदगी में कभी भी वायबल होना बहुत मुश्किल है। अगर उसका प्रॉफिटेबल हो जाए, कल से भी प्रॉफिटेबल हो जाए, कल से भी तो इन्वेस्टमेंट के और ग्रोथ बढ़ाने के जो भी प्रयास वित्त मंत्री जी की तरफ से आज अनाउंस किए गए हैं, उसका बैंकिंग सेक्टर के हेल्थ पे कोई खास प्रभाव नहीं, ये नहीं कह सकते कि खास प्रभाव नहीं पड़ेगा जब भी आपका, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जब वो होगा तो फिर बैंक के ऊपर दबाव होगा लोन का और फिर वो लोन देंगे, फिर उस वही विशेष साइकिल बन जाएगी। वासुदेव साहब का जो जनरल प्रोग्नोसिस है वो बिल्कुल सही है कि अगर आपका जीडीपी बढ़े, ऑटोमेटिकली अर्थनैतिक व्यवस्था इंप्रूव होगा, तो कंपनियां अपना लोन वापस देने की हालात में आनी चाहिए और बहुत सारे कंपनियां आएंगे भी। पर बहुत सारे बिग टिकट जो इन्वेस्टमेंट्स हम जो बिग टिकट बोलते हैं, जो व्यवहारिक अनुभव है उसके उलट, उसके हिसाब से लगता नहीं है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ पाएंगे। जी Amrita, in fact, I just wanted to move on from the banking sector to talk about fiscal deficit and the fact that that target has been shifted, which turned out to be quite a disappointment because everybody went into this budget thinking that the finance minister's big announcement is going to meet those fiscal targets, but it's been delayed by a year. In terms of just, we have 10 minutes, so very quickly we'll try to talk about the fiscal deficit first. So, what the finance minister has done, as I said earlier, he is trying to consolidate the things. He gave certain benefits last year. He gave a little bit of, not to the same extent, but some benefit this year. He realizes that, it takes time for any system, and India being such a big country, it will take time to stabilize. So, it's the one way of reducing the fiscal deficit will be to raise, taxes. And now it's not a situation where, he can go ahead and raise taxes. So, considering this, he has adopted an approach by agreeing that okay, the fiscal deficit is not something which is going to be reduced. If he maintains this year, and if the things which he is trying to do, the benefits which have been, or the stable regime which is being given, makes the industry or the service sector to perform, the fiscal deficits come down automatically. The most important thing, if you look at the entire thing, is the emphasis is more on the administration. So, as Jayanto said, whatever the policy, is being done, unless it is implemented, if the people are not allowed to siphon off, then obviously, the banks will not go bankrupt or their NPA will not rise. So that applies, even in case of the tax administration, and this is what the finance minister says that, okay, let us have a non-adversarial tax regime which will provide certainty and stability for any investor. जी, तो इस ओवरऑल अगर हम देखें तो इससे क्या हमारी ग्रोथ को गति मिलेगी, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ने के संकेत दिए गए हैं, या जो हम जो अच्छे दिनों के वादे की बात सरकार कहती रही, क्या वो अच्छे दिन के संकेत आज इस बजट से देखने को मिलने लगे हैं? देखिए, मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूँ। मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ कि ये कोई बजट ऐसा था जिसमें बहुत बिग रिलीफ देने की या इंसेंटिव देने की बात हो रही थी, बिकॉज रेलवे बजट भी रहा और जो अप्रोच इनका फाइनेंस मिनिस्टर साहब का रहा, तो ये था कि ये एक ऐसा बजट होगा जो एक गति देगा एडमिनिस्ट्रेशन के रेस्पेक्ट में, नॉट कि हमने आप इस सेक्टर को इतना बेनिफिट दे दिया। द मोमेंट आप किसी को बेनिफिट देते हैं कि इनएफिशिएंसी जनरेट करते हैं इकोनॉमी में, लोगों का ध्यान होता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को छोड़ के व्हाई नॉट गो टू दैट इंडस्ट्री। आप एक एरिया को आपको इंसेंटिव दे दीजिए, लोग केवल एक शेड खड़ा कर देंगे उस एरिया में एंड ट्राई करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो रहा है। तो आप जो इंसेंटिव और बेनिफिट्स देने की कोशिश करते हैं वो हर बार उस तरह से नहीं होता है। तो जब तक कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ये ना हो जाए कि उसको इंश्योर करे कि वो मैनिपुलेट हो सकता है, आपका इंसेंटिव देना कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यदि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यदि स्टेबल है और कंट्रोल कर सकता है उसको, तब आपको इंसेंटिव देते हैं तो उसको आप मॉनिटर भी कर सकते हैं।
और इसीलिए डिजिटल जमाने में जब इंफॉर्मेशन जितना आ रहा है, यदि टैक्स डिपार्टमेंट उसको चर्न करके और एक समझने लायक फॉर्म में ले आता है और तब देखता है कि वो लोग जो हैं, जो इनकम जिनके पास है वो पे कर रहे हैं टैक्स या नहीं, देन इन दैट केस वो सारे जो लीकेजेस हैं आप ऑटोमेटिकली बंद कर लेंगे। लेकिन वो क्या 1 साल 2 साल की प्रक्रिया तो नहीं हो सकता, लंबा प्रोसेस नहीं हो, कोई भी चीज अमृता, कोई भी चीज 1 साल 2 साल में नहीं हो सकती है। हाँ। उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, लेकिन एक मैसेज आता है बाय बजट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। GDP growth, Amrita, is very interesting because the base year has been changed and therefore the numbers are very different from what we had been seeing in the previous years. Mr. Bhanumurthy, we'll come to you on that because the finance minister said that double-digit growth is what his target is, 8 to 8.5% in the coming fiscal. So are these targets achievable? Do you think what could be perhaps the roadblocks in achieving that kind of a high GDP growth that the government is pushing for, and how much of that is the base year effect in play? Well, I think right now the budget targets about 8 to 8.5%. But if they really stick to the fiscal consolidation roadmap as the 14th Finance Commission recommended, I don't see any reason why we cannot achieve double-digit growth maybe by the end of the second or third year. But if you look at the economic survey, the front page, India has achieved many times double-digit growth based on this current indicator. So the current indicator itself, the GDP at market prices itself, is something slightly higher than the number which we used to see in the past, that is GDP at factor cost. So the GDP at market prices, my guess is that, as I said, if you can really revive the manufacturing sector, address the banking sector issues, it will be easy to achieve double-digit growth in a couple of years' time. इससे इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ भारत दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? Well, if you look at if your growth, if you concentrate more on the manufacturing sector, which supposed to be having a higher labor-intensive growth compared to what we have seen the service sector-led growth in the past. So if you achieve the double-digit growth with manufacturing-led, I would expect that it should create more job opportunities and it will be more inclusive growth compared to service-led growth, which was, as Jayanto already pointed out, less job-creating kind of growth. जयंतो, क्या आपको भी लग रहा है कि अब थोड़ा सा जो ध्यान है वो शिफ्ट हो रहा है सर्विस सेक्टर के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? आपके कहने का मतलब मुझे लगता है शायद यही है। ये पिछले 5 साल से इसकी कोशिश की जा रही है और तो ये शिफ्ट हो पाएगा अगर ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार डाउन जा रहा था। बिल्कुल, ये एक चीज है और दूसरा चीज है मनरेगा में जो आप पैसे लगा रहे थे, बीच में एक कुछ बातचीत चल रही थी कि मनरेगा को घटाया जाएगा। घटाया नहीं जाने से एक पॉजिटिव स्टेप है। यस, मनरेगा को बहुत सारे फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, पर मनरेगा डिटरमिन करती है रूरल वेजेस कितने होंगे और वो अपने में बहुत बड़ा एक इंक्लूसिव ग्रोथ की फैक्टर है, क्योंकि आज के तारीख में रूरल वेजेस काफी ऊंचे हो गए हैं। उससे लोगों की वाकई में जो गरीब आदमी था, जो लास्ट मैन इन दी लाइन था, उसका वेजेस बढ़े हैं और उसका खर्चा करने की क्षमता बढ़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कल जिस तरह से पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की गई उससे तो कुछ और पड़ रहा था, परंतु आज अगर आप बजट डॉक्यूमेंट देखें तो मनरेगा में वाकई में कुछ पैसा लगाया गया। ये बात अलग है कि उसको फाइन प्रिंट आपको देखने पड़ेंगे, कंडीशंस देखने पड़ेंगे। हाँ, ये बात था, पहले से ही था कि मनरेगा जब लगाई गई थी, ये एक क्रिटिसिज्म उसकी ये थी कि आप कोई एसेट्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों को काम दे रहे हैं, खोद रहे हैं और गड्ढे भर रहे हैं। बिल्कुल, ये वो अगर फाइन ट्यून कर सके तो अच्छी बात। That's very unfair criticism about NREGA. There are many places where the assets have been created. I mean, this digging pit and closing pit is something which has purely from the media kind of a imagination. But there are lots of places where we have seen assets have been created. It doesn't mean that NREGA 2 साल पहले मनरेगा 2 भी लॉन्च किया गया था, जिसमें एसेट क्रिएशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिलाने की कोशिश की गई थी। No, but if you look at the other programs, they don't have. I mean, you don't know what's happening. At least we know in NREGA what is happening. We can easily make out because we have a better information set only in this particular program and not in any other programs where you cannot comment.
All right, but the rural wage growth, as the finance minister himself said, remains a serious cause for concern. One of the big challenges he outlined at the outset of his budget, rural growth, rural wage growth, or whether income is going to the rural masses, and they certainly have to pay a little more service tax as far as their consumable. बावजूद इसके कि मनरेगा को नहीं घटाया जा रहा है और बाकी चीजों की तरफ भी ध्यान दिलाने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात कही जा रही है, रोजगार देने की बात कही जा रही है, तो इसका मतलब सरकार ये समझ रही है कि वहां पे पैसे पंप करने की जरूरत है, मगर क्या तरीका और अपनाया जाए मनरेगा के अलावा, ये सोचने की जरूरत है, या अभी पर्याप्त कोशिश ठीक, मतलब कोशिश की जो दिशा चल रही है वो ठीक है? सबसे बड़ी बात है कि कितने रिसोर्सेस हैं। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे मान लीजिए यदि हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार इन्वेस्ट करे किसी चीज में, जॉब बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए, मनरेगा हो या किसी में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, डिपेंड करता है कि उसके पास कितने रिसोर्सेस हैं। और आज यदि आप रिसोर्सेस की हालत देखिए तो रिसोर्सेस इनफाइनाइट तो है नहीं। रादर यदि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है उसमें ये बात बहुत क्लियर थी कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और इसलिए उन्होंने जो बेनिफिट दी वो बेनिफिट इस तरह से सोच के दी उसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़े, ये नहीं कि वो से स्पेंडिंग बढ़े। तो उस तरह से यदि आप देखते हैं तो ये एम्पावरमेंट ऑफ विलेजेस सबसे ज्यादा जरूरी है और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को इनफैक्ट लग के करना होगा। और उस तरह से जैसे मान लीजिए जो पैसा जाता है यदि किसान के लिए वो डायरेक्टली उनको पहुंचे, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। द सेकंड वन इज कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग हो या मान लीजिए हेल्थ की बिल्डिंग हो, वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड हो, एक्चुअली फंक्शनल हो। आज यदि स्कूल में चले जाइए तो बहुत कम स्कूल होंगे जिसमें जितने शिक्षक रजिस्टर में हैं उतने शिक्षक आते हैं और जितने विद्यार्थी रजिस्टर में हैं वो उतने आते हैं। तो वो सारी चीजें हैं जो सरकार नहीं कर सकती है, वो तो समाज को भी खुद ही करना पड़ेगा। तो सरकार ने आज अपनी तरफ से इच्छा शक्ति दिखाई है, अब समाज को आगे बढ़कर उसको संभालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का शामिल होने के लिए। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले देखते हैं राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं। हमने अपने आर्थिक विशेषज्ञों के जरिए दिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि इस बजट की खास बातें क्या हैं। हालांकि राजनीतिक दल इससे बहुत ज्यादा प्रभावित और संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आइए देखते हैं राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या है। मैं मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट को रोजगार लक्षी मानता हूं और गरीबों को सुरक्षा प्रदान करने वाला ये बजट है। इसलिए मैं वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। तो अपने मूल बजट से हटते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जो भी रीऑर्गेनाइजेशन बिल है उसमें जो प्रोविजन है और जो कमिटमेंट है उसका पालन किया जाएगा। उनकी इस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। इससे ये उम्मीद बंधी है कि जो हमें मिलता था वह तो कम से कम जरूर मिलेगा। तो इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। भारत को एक आधुनिक भारत बनाने की चर्चा बराबर की जाती रही है, लेकिन भारत को एक आधुनिक भारत बनाने की दिशा में गरीबी और बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने की दिशा में जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे इसके पहले कभी नहीं हुआ। और मैं कह सकता हूं कि यह बजट जो आज प्रस्तुत हुआ है यहाँ पर, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है और आधुनिक भारत के निर्माण में एक यह बहुत ही सकारात्मक और सार्थक पहल है। I have with me Mr. Rahul Bajaj, past president, CII. Sir, your reaction on the budget announced today? Very positive, which has been of a lot of people, at least from industry and even professionals. Perhaps the opposition won't look at it this way, but I'm very, very positive on this budget. Sir, how does the industry sees the investments which have been announced? You see, the details will have to be seen because the budget speech was over just about 45 minutes ago. So, without going to details, in the circumstances with the fiscal space available to the finance minister, for example, additional 70,000 crores for infrastructure. In spite of that, the finance minister says, which normally people don't, that this is not enough. So things like this, I think opposition will criticize, of course. They will criticize people like me, saying this is not for the poor, but
I think there are so many schemes there for the middle class, lower middle class, and the poor that I don't agree with that if there is a criticism like that. Has he been able to balance the physical requirements of what was required? In the circumstances, yes. I mean, last year's is 4.1%. For 15-16, instead of 3.6, he's done it at 3.9, which is a negligible increase to be able to invest more in infrastructure. So I think it's a very good thing, and he'll go to 3% fiscal deficit in 3 years' time. Thank you so much, Mr. Bajaj. Indeed, what Mr. Bajaj has said, that it is indeed a very positive sign for the industries. Over to the studio. And the direct taxes means benefit to those who are direct tax payers or income, those who get income. And indirect taxes are on all commodities which is passed on to the consumer. So indirect taxes being nearly 3 times higher than the concession given to the direct taxes. That means there is a direct benefit that has been given to the rich, and clearly therefore these budget proposals will lead to the widening of the economic inequality gulf between the two Indias. 9 months' time, they are not presented what they have done 9 months' time. 9 months' time. That was because 9 months' time, at least this time this is a full budget. When that is a full budget for the entire term, they should reel out what they are going to, there should be some indication what they are going to do and what is their approach for another rest of the term. I have Vipin Sondhi, CEO and MD JCB Infrastructure. Sir, you have seen the budget, and infrastructure is your crucial interest. So what kind of signal that Arun Jaitley had sent in his budget speech? I think there are several positive signals, but first let me just comment on the broad direction of the budget. It covers infrastructure, it covers social, it covers youth, which is very important, it covers senior citizens. So directionally it's tremendous, and what I liked was that the states will be an equal partner because we are a federally governed state. How do you see Make in India project of this government growing considering today's budget? See, manufacturing is going to be the future as far as formal job creation for unskilled, skilled, semi-skilled and other skilled people is concerned. We have no option but to do it now. But when you look at infra spend, the moment you spend on infra, steel, cement, construction equipment, demand for that goes up. That's all Make in India, and these are all triggers for ancillarization and small industries to go forward. ये बजट हमें देश की आम जनता के हिसाब से कोई प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा है. And it will accelerate the growth, and it will at the end will bring all-round development. Very innovative, very inspiring, and people will be very happy not only about the budget proposals but also the reforms in taxation and also the steps that are going to be taken to end the black money and taking care of the vulnerable sections, uplifting the poorest of the poor. These are the highlights of this budget. There is no timeline with regard to the implementation of the goods and service tax. The finance minister has said that we'll bring it in next year. The direct taxes code has been completely junked and abandoned. This government, which used to talk about tax terrorism when they were in the opposition, there is nothing except a homely on retrospective taxation. Moreover, importantly, there is nothing in this budget for the common man.